In the last class, we had started off, I had, in fact, summarized you the chapter that is constitutional design. I told you that what is the meaning of constitution. सबसे पहले तो हम लोगों को जो है constitution का मतलब समझना है, and then how constitution helps the country. जिन कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जो पीपल हु आर लिविंग देयर, जिनको हम सिटीजन्स बोलते हैं, दे डू नॉट हैव एनी राइट। अगर मान लो कुछ गलत होता है या फिर दे वांट सम राइट्स, दे वांट सम जस्टिस, तो दे डोंट गेट इट। दे डोंट हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म मतलब उनके पास जो है एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको इस बात को समझाता है, इट गिव्स सम इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट कि जब गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो व्हाट आर द रूल्स दे नीड टू फॉलो, and if the government is not following, then the citizens have the rights to point out them. इसीलिए we started off with the example of South Africa. Today I am going to start the chapter along with NCERT. This is Nelson Mandela, who was the first black president of South Africa. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all the people live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs to, it is an ideal for which I am prepared to die. This was the you can say out of his autobiography ये था. तो now let us see कि what happened in South Africa और आपके पेपर में क्या क्वेश्चंस आएंगे. पहला तो क्वेश्चन आ सकता है, ये जो आपके रेड कलर में या पिंक कलर में लिखा है इसको एक्सप्लेन करना. ट्रेजन, अपार्थीड. ट्रेजन का मतलब होता है धोखाधड़ी. This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. मतलब उनको किस बात की सजा मिली थी? What was? उनको कहा गया था कि उन्होंने जो white government है, the government which was run by the white minorities, उनके खिलाफ धोखाधड़ी, षड्यंत्र के लिए उनको जो है he was sentenced to death. and apartheid जो है it is a practice जिसमें इंसान को गोरा या काला उसके रेस के अकॉर्डिंग जो है उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. He spent the next 28 years in, ये पेपर में आता 1 marker question, how many years he was in the jail. तो he was in the jail for 28 years और उस जेल का नाम है रॉबिन आइलैंड. ये भी पेपर में आता है. नाउ व्हाट इज स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड. मतलब आपके जो पहले था ये पेपर में तो क्वेश्चन आता था कि अपार्थेड में क्या किया जाता है. अगर आप इस बोर्ड को देखते हैं, सिटी ऑफ डरबन, डरबन इज इन साउथ अफ्रीका, इट रीड्स दैट यहां पर जो नहाने के लिए है दैट इज ओनली फॉर द वाइट. यहां पर आप देखो, नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्स, इफ यू एंटर दीज प्रीमिसेस एट नाइट you will be listed as missing.
आर्म्ड गार्ड शूट ऑन साइट, सैवेज डॉग्स डिवोर द कॉप्स। मतलब वहां पे जो आर्म्ड गार्ड होते हैं वो लोग गोली चला देते हैं, किस पर? जो काले होते हैं, इंडियंस जो ब्लैक्स हैं, एंड उनकी जो लाश होती है उसको वहां पे जो रोड में जो कुत्ते होते हैं वो खा जाते हैं। मीन्स दिस वॉज द पनिशमेंट दैट वॉज गिवन टू द ब्लैक्स। नाउ आपके पेपर का क्वेश्चन है, व्हाट इज अपार्थेड? ये सबसे पहले, इफ यू सी दिस लाइन, apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. क्योंकि apartheid practice was not much. Yes, in US also blacks and whites के बीच में differences आते थे, वहां पर भी था, बट जैसा साउथ अफ्रीका में था that was nowhere else in the world. The white Europeans, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया को ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था, सिमिलरली यूरोप ने वहां पर भी साउथ अफ्रीका को कॉलोनाइज किया था. During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. The native people of South Africa are black in color and they were in majority. They are 3/4 of the population. उसके बावजूद उनको ब्लैक्स बुलाया जाता था. Besides these, there were people of mixed color, मतलब जैसे हमारे जैसे थोड़े सांवले, who were called colored, and people who migrated from India. Yeah, Mandela was the first president of South Africa. He was the first black president of South Africa. The white rulers treated all non-whites, चाहे वो colored हो, चाहे वो Indians हो, they did not have any voting rights. अब क्या क्या किया जाता था? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. What was practiced during apartheid? मतलब किस तरीके से ब्लैक्स पर अत्याचार होता था. The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. First, they were forbidden from living in the white areas. जहां पर गोरे लोग रहते थे उसके आसपास पे भी नहीं रहते थे. There is one very famous movie and a novel also, Kruger's Park. अगर आप उसको पढ़ते तो आप देखोगे उसमें जो ब्लैक्स होते थे ना, अगर उनको व्हाइट्स के एरिया को, अब मान लो आप जो हो दिलशाद गार्डन रहते हो, बीच में एक जगह आ गई है जहां व्हाइट्स रहते हैं, आपको उसे पार करके जाना है, तो द ब्लैक्स हैड टू क्रॉल लाइक एनिमल्स. दे कुड वर्क इन व्हाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट. ट्रेन्स, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema hall, theater, beach, swimming pools, मतलब हर कॉमन पब्लिक प्लेस पर व्हाइट और ब्लैक्स के लिए अलग होता था. और इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन, मतलब काले और व्हाइट के बीच में भेदभाव, उनको अलग कर देना. They could not even visit the churches where whites worship. Blacks could not form associations or protest against the terrible treatment. और उनके पास कोई राइट नहीं था ना. अगर हम हिंदुस्तान में ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है कि अत्याचार नहीं होते, लेकिन you have the rights. आपके पास PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, आपके पास अपने, मतलब कि you also have certain rights. You can claim. You have the constitutional rights, you have the democratic rights, लेकिन उनके पास तो कोई राइट था ही नहीं. Since 50, the black, colored and Indians fought against the apartheid system.
दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्च स्ट्राइक. वहां पर एक बहुत फेमस पॉलिटिकल पार्टी था जिसका नाम था ANC. उसी के प्रेसिडेंट थे आपके नेल्सन मंडेला. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. Umbrella मतलब उन्हीं की छत्र छाया में सब लोग जो है प्रोटेस्ट करते थे. This included many workers' unions and Communist Party. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose the apartheid and playing a lead. मतलब ऐसा नहीं है कि whites बिल्कुल ही बदतमीज थे, कुछ लोगों ने तो सपोर्ट भी किया था. Several countries denounced apartheid as unjust and racist. बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सिस्टम एक गलत सिस्टम है. भाई काला और गोरा जो है that depends on many factors. First of all, the factor is where you are born. It's not about the color that मेरी फैमिली को बिलोंग नहीं कर रहा. It belongs to the area I am born. मेरे कजिन्स हैं, दे आर लिविंग इन US. उनके बच्चे दे आर कलर, मतलब उनके कलर जो है बिल्कुल अलग है. बिकॉज पहला जेनेटिक फैक्टर होता है. सेकेंड फैक्टर आपका होता है द एरिया. लाइक इन US वगैरह में प्रॉब्लम्स क्या है, वहां आपकी धूप कम आती है. सो एक तरफ से बिकॉज द एरिया डजंट रिसीव मच सन रेज, तो हम बोलते हैं ना कैरेटिन एंड मेलानिन, तो दैट इज लेस. और उसी वजह से वहां पर आप कह सकते हो कि द पीपल आर वाइट. सो इट डजंट, टेम्परेट जोन में पीपल थोड़े काले होते हैं. दैट्स नॉट अ वे टू सेग्रीगेट एनीवन. लेकिन किया था, उनको टॉर्चर किया जाता, मारा जाता. नाउ व्हाट हैपेंड, दिस ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, इट fought for this apartheid system and ultimately on 26th April 1994 they got the freedom. That is कितने सालों बाद. As protests and struggles against apartheid had increased, the government realized they could no longer keep the blacks under their rule through repression. मतलब उनको दबाकर नहीं रख सकते. The white regime changed its policies. Discriminatory laws were repealed. जो डिस्क्रिमिनेट करता था, जो उनका लॉ था उसके अकॉर्डिंग ब्लैक्स के नॉट वर्क, ब्लैक्स के नॉट डू, सब हटाया. Ban on political parties and restrictions on the media were lifted. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. And finally, at the midnight of 26 April, ये पेपर में आता है, बहुत 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 important है. मतलब कि when did South Africa get its freedom? The new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newborn democracy in the world. The apartheid government came to an end, paving way for the formation of a multiracial government. और this was the day when they got the freedom. आपके पेपर में दिस कैन कम, इस चैप्टर से एक आता है, मतलब इस वाले पोर्शन से आता है. इन विच प्रिजन वॉज ही इम्प्रिजन फॉर हाउ मेनी ईयर्स, एंड देन हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, व्हाट इज अपार्थेड, हाउ वॉज अपार्थेड प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका, देन व्हेन डिड साउथ अफ्रीका अटेन इट्स डेमोक्रेसी. ये आपके इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस यहाँ तक. After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. Atrocities matlab cruelties. They said, let us build a new South Africa based on equality of all races of men and women, on democratic values, social justice and human rights. The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw the common constitution. मतलब वो पार्टी जिसने इन पर अत्याचार किया
और वो पार्टी जिसने अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई की, दोनों साथ में थे। जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, द नेशनल असेंबली हैड फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली यहाँ पर जो ब्लैक्स थे और व्हाइट्स थे, दोनों ने मिलकर कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, विच इज रियली वेरी यू कैन से यूनिक। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions the world ever had. This constitution gave its citizens the most extensive rights available in any country. Together, they decided in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded. No one should be treated as a demon, मतलब राक्षस की तरह. They agreed everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. पहले जो भी किया उन्होंने, अत्याचार किया या लड़ाई की. The preamble to the South African Constitution sums up the spirit. और इस तरीके से उन्होंने जो है अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नई शुरुआत की, जिसमें the whites and the blacks were given equality. The whites जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया था, एंड द ब्लैक्स जिन्होंने लड़ाई की थी, दोनों साथ में थे. मैंने आपको बताया जिस दिन उन लोगों ने ओथ लिया था 10 मई 1994, उस दिन दो आपके नेशनल एंथम जो है वो चलाए गए थे. The South African Constitution inspires democrats all over the world. A state, मतलब जब वहां पर इस तरीके का अत्याचार हो रहा था ना, तब many of the countries जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी थी, because they were not able to support, they were not able to oppose. A state denounced मतलब जिसको एंटायर वर्ल्ड ने अकेला छोड़ दिया था till 1994 as a most undemocratic, now is seen as a model of democracy. कैसे हुआ ये? What made change possible for determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences into the binding glue of Rainbow Nation
The Constitution of South Africa speaks both of past and future. As on the one hand, it is a solemn pact in which we South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our race's brutal, repressive past. But it is more than that, it is also a charter for transformation into one which is truly shared by all people, a country which is the fullest sense belong to all, black, white, women, men. यानी कि उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहां everyone was given equality. The South African example is a good way to understand why we need constitution. जैसे मैंने भी आपको बताया, in the monarchies or in non-democratic or non-constitutional, I cannot say non-democratic, but in a non-constitutional countries, if something wrong happens to you, you don't have any kind of rights. The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals, and it was not easy to. They had to. They had their fears. They wanted to safeguard their interests. The black majority was keen to ensure democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. The white was keen to protect his privileges and properties. क्योंकि white को अब डर था कि भाई अब blacks आकर अगर हमारे साथ में उन्होंने revenge लिया तो हम क्या करेंगे. After long negotiations, both parties agreed to a compromise. The whites agreed to the principle of majority and that of one person, one vote. मतलब रूल कौन करेगा, ब्लैक्स करेंगे, बट देयर विल बी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर एक इंसान को एक वोट और एक वोट की कीमत. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. The blacks agreed majority rule would not be absolute, मतलब वो लोग पावर को मिसयूज नहीं करेंगे. They agreed that majority would not take away the property of the white. This compromise was not easy. सोचो, the only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. These rules laid down how the rulers are to be chosen in future. मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखते हैं, कुछ रूल्स, रूलर्स को कैसे चूज करेंगे, देन हाउ द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड, व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन नॉट डू. Finally, these rules decide the rights of the citizens. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South Africans did. They agreed on some basic rule. They agreed these rule will be supreme और government जो भी होगा वो इन rules को over power नहीं कर सकता, मतलब इनको तोड़ नहीं सकता. और इन बेसिक रूल्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो तभी हो गया था when we had attained our independence. Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse group. Their relations may not be as bad as between whites and blacks, but all over the world people have differences of opinion and interest. ये पेपर में आपका जो अब पढ़ने वाली हूं, this comes as true and false. Whether democratic or non-democratic, most countries in the world need to have basic rules. जरूरी नहीं है कि एक कंट्री डेमोक्रेटिक हो तभी आपका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर एवरीवन. दे आर द बेसिक रूल्स. This applies not just to government, any association, any club, any cooperatives, पॉलिटिकल पार्टी, सबका अपना. और ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, चार्टर ऑफ रूल्स बोलते हैं.
हम उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं, मीन्स वी गिव इट डिफरेंट नेम्स, बट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल्स दैट टेल्स का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Constitution is the supreme law that determines the relation between people in the territory called citizens and also relation between people and government. अब ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपका है what does constitution do. इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है the constitution does many things, explain. The constitution does many things, explain. तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या करता है. First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. क्योंकि वो बताता है, जैसे हम बोलते हैं सेक्युलर, हम बोलते हैं सोशलिस्ट, फ्रेटर्निटी, यानी कि दैट मीन्स इट इज गिविंग अस सम बेसिक रूल कि हमें ये चीज को समझना चाहिए. सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि हर कंट्री में इलेक्शन का एक सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम को उसने बताया है. जैसे इंडिया में द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, whereas the president is the head of state. Same is in United Kingdom. जो जॉन बोरिस हैं तो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ जो है शी इज जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट इन अमेरिका द प्रेसिडेंट हैज द पावर, वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं होता. तो दैट टेल्स कि इस कंट्री के अंदर मतलब हम हर कंट्री अपने लिए अपने हिसाब से बनाता है. थर्ड, it lays down the limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. Fourth, it expresses the aspiration of the people about creating a good society. जैसे brotherhood is very important, equality, freedom. ये जो लाइन अभी लिखी है, all countries that have constitutions are not necessarily democratic, but ये आपके assertion and reason में आने वाला question है. This can come as an assertion and reason. जरूरी नहीं है कि जितनी कंट्रीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आपका फ्रेंच असेंबली वॉज, फ्रेंच जो था रेवोल्यूशन में लुइस 16 वॉज द किंग, बट फ्रांस वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. सो इट इज कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, जरूरी नहीं है इट शुड बी डेमोक्रेटिक, बट all the countries that are democratic will have constitution. लेकिन अगर आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन होना 100% जरूरी है. After the war of independence against Great Britain, America gave themselves a constitution. After the revolution, French approved a democratic constitution, यानी कि हर जगह पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है. Now this was what is constitution, what does the constitution do in a country, how South Africa had made its constitution. Now we are coming कि हमारा constitution कैसे बना था, who were the makers. ये जो इस वाले चैप्टर में अगर आप देखो, इस वाले कंसेप्ट में देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल the Constitution of India was born under difficult circumstances. I repeat, the Constitution of India was born under difficult circumstances. तो आपको उसमें 3 मार्क्स में बताना होगा. Secondly, who drafted a constitution in 1931?
ये आपका होगा. Like South Africa, India's constitution was also drawn under very difficult circumstances. क्यों? साउथ अफ्रीका में तो प्रॉब्लम ये थी कि ब्लैक्स एंड व्हाइट्स को साथ में रखा गया था. वो ब्लैक्स जिन्होंने क्रुएलिटी को सहा था, वो व्हाइट्स जो अभी तक पावर में थे. इन इंडिया इट वाज बिकॉज इंडिया वाज पार्टीशन. पहले तो इंडिया हैड कम आउट फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश. उसके बाद हमारा पार्टीशन हो गया था. दो चीजें साथ में थी. ब्रिटिश ने बहुत सारी चीजें अच्छी की थी, बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी विच वर नॉट. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time, ये आपका पेपर में आएगा एक एक करके. India were the people were emerging from the status of subject to that of citizens. The country was born through a partition on the basis of religious differences. क्योंकि the Muslim majority had gone to Pakistan and the Hindu majority had come to India. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? मेजॉरिटी था. इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे मुस्लिम्स नहीं है. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. ये सबसे बड़ी बात थी. पता है उस वक्त में क्या था? मतलब हम लोग रहते थे विवेक विहार. तो जो विवेक विहार के हमारा मतलब कि जहाँ हमारा घर था, तो हमारे एकदम साथ में देरा मतलब एक सरदार जी रहते हैं. एंड इस तरफ जो थे देवर पंजाबीज. तो जो उनके फादर थे मतलब पापा जी, हमें उन्होंने बताया कि जहाँ वो पाकिस्तान में रहते थे, पेशावर में पता नहीं कहाँ, तो वहाँ उनका काफ़ी बड़ा घर था. यार अ वेरी ह्यूज हाउस. लेकिन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड और उनको टाइम नहीं दिया गया था कि वो लोग वहां से निकल के जाए. उनको रात के 12 बजे का टाइम दिया गया था, क्योंकि मार्क कर दिया गया था कि ये एरिया सारा पाकिस्तान का पंजाब है. ये एरिया सारा. अब आप खुद सोचो कि आपके घर के अंदर अगर एक रूम में ये बोल दिया जाए कि ये तुम्हारा है, ये पड़ोसी का है, तो आप एक मतलब कि एक दिन में सारा सामान कैसे ट्रांसफर करोगे? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. द पीपल हैड टू, जैसा उनका घर था, जैसे उनके हाथ में सामान था, कपड़े थे, जो भी था, उठ के वो लोग पैदल, देन ऑन द ट्रेन, जो उनको मिल रहा था, दे वर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स. एंड वाइल क्रॉसिंग दे वर किल्ड, देयर वर वायलेंस. हिंदू एरियाज में मुस्लिम जाने से डरते थे, मुस्लिम्स एरियाज में हिंदूज डरते थे. So there was communal violence. The British had left it to the rulers of princely states. हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था that इंडिया पहले, इंडिया में दो तरीके के स्टेट्स थे. आपके सिंध, जो अभी आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया, उसको हम सिंध प्रोविंस बोलते थे. देन उसे नीचे वाले को हम पंजाब प्रोविंस बोलते थे, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सारा पंजाब प्रोविंस माना जाता था. देन आपका राजस्थान, ये वाला जो एरिया, इसको राजपूताना प्रोविंस बोलते थे. इनको राजस्थान ऐसा नहीं नाम होता था, राजपूताना प्रोविंस. गुजरात, विदर्भा, महाराष्ट्र, कर्नाटका के कुछ पोर्शन, ये सारे आपके जो है बॉम्बे प्रोविंस माना जाता था. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ मतलब कि ये पार्ट आपका जो है सेंट्रल प्रोविंस माना जाता था. देन आपका उड़ीसा, देन आपके झारखंड, आपका कोलकाता, ये सबको कलकत्ता प्रोविंस माना जाता था. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एक दो पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, सम पार्ट्स ऑफ केरला जो है दैट वाज कंसिडर्ड एज मद्रास प्रोविंस. और केरला का एक हिस्सा था जिसको ट्रावनकोर बोला जाता था. तो हमारे जो है या तो प्रोविंसेस थी या फिर प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे ट्रावनकोर, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, देन आपका पटौड़ी. गुजरात के अंदर देयर वर मोर देन 500 स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स.
ब्रिटिश ने कोई क्लियर कट रूल नहीं दिया था कि ये स्टेट जो मतलब कि प्रिंसली स्टेट है, दिस विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, दिस विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। दे गेव अ क्लियर कट, उन्होंने रूलर्स के ऊपर छोड़ दिया। जूनागढ़ जो है इट जॉइंट पाकिस्तान। कश्मीर ने बोला हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, निजाम ने बोला हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। सो अब कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें अलग अलग लोग हैं। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वॉज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। और आपको पता है ये काम किसने किया था हमारे हिंदुस्तान में? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दो दिस इज नॉट देयर इन योर बुक, लेकिन पेपर में लास्ट ईयर ही आया था। दिस वॉज डन बाय द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम जिस मैप को देख रहे हैं, जिसमें जूनागढ़ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया और कश्मीर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, ट्रावनकोर इज ऑल्सो, ये सारा जो काम था दैट वाज डन बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल was the home minister, broadcasting in the interim government, lawyer and leader of Bardoli peace and satyagrah, played a decisive role in the integration of Indian princely states, and later he was a deputy prime minister. ये इनके ही सारे एफर्ट्स थे दैट मणिपुर, देन आपका जूनागढ़ तो पाकिस्तान के साथ था, लेकिन वहां पर एक वोटिंग की गई, लोगों से पूछा गया आपको किसके साथ रहना, मोस्ट ऑफ द पीपल वोटेड फॉर इंडिया, जूनागढ़ इंडिया का हो गया। ट्रावनकोर ने बाद में खुद ही इंडिया का हिस्सा बना लिया, प्रॉब्लम सिर्फ आई थी कश्मीर के साथ, एंड दैट इज वाई कश्मीर में आर्टिकल 370 को लगाया गया। उसकी कहानी मैं आपको कभी और सुनाऊंगी कि कश्मीर कैसे, कश्मीर मतलब कि वाई देयर वाज अ प्रॉब्लम, और अभी भी कश्मीर में ऐसी क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हैं। And it was part of Indian Union. When the constitution was being written, the future of the country did not look so secure as it does today. क्योंकि डर था, कभी भी लड़ाई हो सकती थी, कभी भी लोग कह सकते थे पाकिस्तान का पंजाब, हिंदुस्तान का पंजाब, देन अमृतसर, लाहौर, देन आपका वेस्ट बंगाल, ये एरियाज थे जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम्स रहते थे। तो जो आपका बांग्लादेश का जो एरिया आपका जिसमें मुस्लिम्स रहते थे, उसको ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया था, एंड जो अभी करंट पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया था, जो जिसमें पहले हमारा अमृतसर हमारे पंजाब का हिस्सा भी था। बट नाउ वाघा बॉर्डर आपका, जो आपके वहां पर जो बॉर्डर्स हैं, ये इसीलिए हैं क्योंकि वो सब पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, बट लेटर ऑन वो एरिया वाज मार्क्ड एज वेस्ट पाकिस्तान, और आपका जो बंगाल के पास जो एरिया था उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा गया था। इन 1972 आफ्टर अ वॉर ईस्ट पाकिस्तान का नाम हो गया था बांग्लादेश। तो जो अभी बांग्लादेश है दैट वाज अर्लियर ईस्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी कि वो पहले इंडिया का हिस्सा था फिर पाकिस्तान का बना। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि कुछ भी हो सकता था। तो नाउ हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम? Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. Much of the consensus had evolved during, मतलब हम वहां पर तो क्या था कि व्हाइट्स एंड ब्लैक्स को बैठकर बात करनी पड़ रही थी। हमारे यहाँ तो जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस वक्त में ही सोच लिया गया था कि जब भी हिंदुस्तान आजाद होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule, it was also a struggle to rejuvenate our country, to transform society and political.
There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path which India should. Such differences exist today, but basic rules were. उस वक्त में हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही 3 तरीके के आपके अलग अलग लोग थे. मोतीलाल नेहरू, CR राजगोपालाचारी, इन सबका मानना था ब्रिटिश के साथ मिलकर इलेक्शन को लड़कर इलेक्शंस में जीतकर हमें इंडिया को जीतना चाहिए. जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का मानना था इनके खिलाफ मोर्चा निकालो. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, BC पाल, इनका मानना था कि अगर हथियार भी उठाना पड़े तो उठाओ. बट स्टिल सब ने एक चीज को कॉमन रखा, that whatever they will do, that will be for the people's welfare. As ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, 1 मार्कर. As far as back in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. मतलब उस वक्त में ही उन्होंने कच्चा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. In 1931, at the Karachi session of INC, dwelt on how independent India's constitution should look like. उसमें ये वाला सारा कुछ आपके पेपर में आता है. What were the features of the constitution drafted in 1931? उसमें उन्होंने बोला था India should have universal adult franchise, right to freedom, equality, rights for the minority. Some basic rules, so values were accepted by all the leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. Constituent Assembly तो हमारा बना था 1945 में. Constituent Assembly वो है जिनके मेंबर्स ने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था, लेकिन उससे पहले ही हमारे लीडर्स ने सोच लिया था. The familiarity with political institutions of colonial rule also developed an agreement to the institutional design, क्योंकि उस वक्त में लेजिस्लेटिव जुडिशरी वगैरह होता था, तो उसको हमने, वो जो अच्छी चीज थी उसको हमने लिया. The British rule had given voting rights to only few. On the basis of British had introduced very weak legislatures. Elections were held in 37 to provincial legislature and ministry. They were not fully democratic. मतलब उनके टाइम पर भी elections होता था, but not everyone did get the votes. But the experience gained by Indians in working of legislative institution, मतलब उनका जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन था, यानी कि जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं या फिर उनके, वो वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उनके साथ काम करने से इंडियंस ने बहुत कुछ सीखा. इट वॉज वेरी यूजफुल. दैट इज वाई अब आपका जो पेपर में आता है, ये आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग. That is why Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from the colonial laws like Government of India Act 1935. Years of thinking and deliberation on the framework of Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. मतलब हमने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वर्ल्ड में, उनके कुछ ना कुछ अच्छाइयों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था. दैट इज व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज बैग ऑफ बोरोइंग. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, that is freedom of speech, आपका liberty. Practice of parliamentary democracy in Britain, मैंने अभी आपको बताया. इंडिया में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, वहां आपके जो क्वीन है शी. हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट विच द पीपल इलेक्ट. सेम इज देयर, हमने उनसे ही लिया था. बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस ने अपने बिल ऑफ राइट्स इज द
list of rights which are given to the citizens. The socialist revolution in India, Russia had inspired many Indians to shape a system. यानी कि हमने अमेरिका से, ब्रिटेन से, रशिया से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, सबसे कुछ ना कुछ सीखा. That is why Indian Constitution is said to be the bag of borrowers. Yet, they were not simply imitating what others had done. उन्होंने जो किया उसको लिया, लेकिन ऐसा नहीं था अच्छा उनके पास बिल ऑफ राइट है हम भी डाल देते. हमने चीटिंग नहीं की, हमने कॉपी कैट नहीं किया, अच्छा उनके पास ये चीज है चलो हम भी डाल देते. उन्होंने पहले सोचा अगर हमें डालना है तो क्या चीज डालनी चाहिए. लाइक उनके पास तो क्वीन है, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट है. क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट इन यूके, बट इन आवर कंट्री इट्स प्रेसिडेंट. एंड हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ही इज इलेक्टेड. वहां क्वीन इलेक्ट नहीं होती है. अगर क्वीन एलिजाबेथ है उसके बाद जो भी मतलब कि उनके नेक्स्ट होगा वही क्वीन बनेंगे या किंग बनेंगे. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ पर अभी जैसे जुलाई 18 को एक प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म होता है तो अनदर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. तो हमने सिर्फ कॉपी कैट नहीं किया था, हमने अपना दिमाग भी लगाया था. सिमिलरली इन अमेरिका सम ऑफ द बिल ऑफ राइट्स आर वेरी गुड, सम नहीं है. हमने उन चीज़ों को भी ऐड किया क्योंकि उनके और हमारे में प्रॉब्लम क्या है. अमेरिकन्स वर लिटरेट्स, इंडियंस का जब हुआ था तो दे वर इलिटरेट्स. अमेरिका वॉज परहैप्स अ रिच कंट्री, हमारा पुअर था. तो हर वो चीज जो उन्होंने अपनाई है वो हम अपना नहीं सकते थे. तो वी टुक, हमने उस पर क्वेश्चन किया वेदर दीज थिंग्स सूटेड अवर कंट्री. जिन चीजों ने हमारी कंट्री को सूट किया हमने उसको अडॉप्ट किया. ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज मेड आफ्टर अ लॉन्ग थॉट. बहुत सोच समझ के बनाया गया था. इट वाज आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट. अभी आप पढ़ोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले कितने मेंबर्स थे, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था 45 में. 45 में इंडिया पाकिस्तान वाला जो एरिया था वो भी इंडिया का था. तो द पीपल फ्रॉम ऑल द प्लेसेस वर इलेक्टेड. पहले इंटरनली इलेक्ट होते थे, जहां जहां लोग रहते थे वहां इलेक्शन होता था. फिर उनके जो लीडर्स होते थे उन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं. देन जब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया तो उन मेंबर्स को हटा दिया गया एंड दोज मेंबर्स हु आर पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन उनको लिया गया. एंड देन दीज पीपल वर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज. ये पॉलिटिशियंस नहीं थे, ये पॉलिटिशियंस भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, बिजनेसमैन भी थे, पोएट्स भी थे, मतलब दे वर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. उसका फायदा क्या हुआ? Everyone could give the problems and solutions of their own area. तो इस तरीके से हमारा जो solution वो है that was made. And सबसे बड़ी बात क्या थी, हमारा जो हिंदुस्तान है we got it from 47 में. हम लोगों को 15th August 1947 we declared. बट ये जो डिक्लेरेशन था ये पहले ही हो गया था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स का पास करना एक दूसरे के साथ में दैट टुक लॉन्ग टाइम. जुलाई 1946 में ब्रिटिश ने जो है दे हैड डिसाइडेड दैट दे वुड बी लिविंग इंडिया. उस वक्त हमारे जो वाइसरॉय थे वो थे लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबैटन. एंड लेटर ऑन ओवर अ पीरियड मीटिंग्स करके कैसे शुरू में हम गवर्नमेंट को चलाएंगे. देन टू नेशन थियोरी, इंडिया एंड पाकिस्तान आपका पार्टीशन होगा. दैट वाज बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना डिड नॉट वांट. तो जिन्ना बिकेम फॉर द पाकिस्तान एरिया, जवाहरलाल नेहरू फॉर द इंडियन एरिया. इस तरीके से जो है धीरे धीरे सब पार्टीशन हुआ. And at last 14th August it was announced for Pakistan. 15th August, that is midnight, it was announced for India. So this is how we made it.